Good morning, Sanidhya. Why the other students are not joining? मैम आज स्नैप होमवर्क पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा था. Yes, there is some work going on in the Snap homework. तो डायरेक्टली जूम से ज्वाइन कर लो. Good morning, children. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good morning, ma'am. So, children, what was your yesterday's topic? Topic was The two rules of refraction. Refraction of light by a glass slab, and some definitions. yes. So we studied refraction of light by a glass slab yesterday. ठीक है? Now, do you have any problem in that topic? उसमें कोई दिक्कत है आप लोग को? Yesterday's topic. क्लास लैब वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है. Pardon, एक मिनट फिर से बोलिए आप. मैम क्लास लैब वाले टॉपिक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है. ग्लास स्लैब वाले टॉपिक में प्रॉब्लम है. अच्छा ठीक है, वो हम क्लियर कर देंगे. अभी चूंकि मैं ये डायग्राम बना चुकी हूँ तो ग्लास स्लैब वाला डायग्राम आपको शेयर करूंगी, तब आपको वो फिर से समझा दूंगी. टुडेज टॉपिक आप देख लो पहले, फिर हम उसको इसको रब करके तब उसको बना लेंगे. ठीक है? नाउ हियर in this topic, dispersion of white light.
what is dispersion? First tell me, and what is prism? Prism क्या है और dispersion क्या है? What is prism and what is dispersion? ये आपको आज का टॉपिक है जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं. So first of all, prism is a piece of transparent material bounded by two plane surface inclined at an angle. और ये आपको ऐसे देखने में लगता होगा वो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, लेकिन वो एक्चुअली इट इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेसेस. दो प्लेन सरफेसेस से वो बाउंडेड होता है. उसका एक स्ट्रक्चर ट्रायंगल की तरह आता है, लाइक दिस व्हाट आई हैव ड्रॉन ऑन द ब्लैक बोर्ड. इस तरह से आता है, लेकिन ये हम आपको शो कर रहे हैं, बट एक्चुअली जब आप वो देखोगे तो वो सरफेस बहुत ही ब्रॉड होता है. इट इज अ ब्रॉड सरफेस. 1 minute. Now after that, what we will discuss here, that how is this splitting of white light take place. White light का splitting कैसे होता है? तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाइट लाइट का ही होता है या दूसरे लाइट्स का भी होता है? These all questions are in our mind. ये सारा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल see that how white light splits into 7 colors. And what are those colors? And what is the reason of this sequence of arrangement of the colors? So all these we will discuss in this topic. First of all, this is your light ray. आप यहाँ देखो थोड़ा. This is your white light. White light, when a ray of white light falls on a prism on one surface of the prism, then it splits into 7 colors. And what is these 7 colors? They are arranged in order of Vibgyor. V-I-B-G-Y-O-R. Vibgyor. This is the sequence. So first is we will as to understand, ऊपर से हम लोग नहीं पढ़ते हैं, इस वर्ड को याद रखते हैं और इसको हम रीड करते हैं. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. Why is this? What is this sequence? On what basis is it arranged? It is arranged on the basis of increasing order of speed. सबसे ज्यादा किसका स्पीड होगा तब? रेड का स्पीड. The speed of violet color is minimum and the speed of red color is maximum. So this variation in speed, अब ये white light कहाँ से किस मीडियम से जा रहा है, किस मीडियम में? It is going from rarer medium to the denser medium. And this change of speed brings about the process of splitting of white light into 7 colors. And the red is bending the minimum. लेकिन आप देखो दोनों में डिफरेंस है. रेड का स्पीड सबसे ज्यादा है लेकिन उसका बेंडिंग सबसे कम है, और वायलेट का स्पीड सबसे कम है और उसका बेंडिंग सबसे ज्यादा है. इज इट क्लियर? तो what will be the reason of splitting of white light? White light के splitting का reason क्या होगा? The reason will be that it is change in the speed when it moves from a rarer medium to a denser medium. Clear? And this phenomenon can be seen in the nature also. Nature में भी ये phenomenon देखा जा सकता है. Children, I don't have the prism just now at home, but I try to go outside to do this experiment. You can do it at home also. एक बड़ा बाउल ले लो और आप एक आर्टिफिशियल प्रिज्म क्रिएट कर सकते हो. कैसे? आज थोड़ा सा सनी डे नहीं है, थोड़ा क्लाउडी है, इसलिए वो पॉसिबल नहीं हो पाया. आई ट्राइड इन द आउटसाइड. जब भी वैसा मौसम आएगा तो आई विल जस्ट ट्राई टू ब्रिंग इट दैट रिकॉर्डेड वीडियो, और आपको बाहर ले जाकर दिखा सकते हैं कि आप एक बाउल में वाटर ले लो, फिल इट
completely or half filled, so that a small mirror you can dip. एक छोटा सा मिरर उसमें आप डिप करो और आप उसको एक एंगल क्रिएट करो, क्रिएट अ एंगल, इस तरह से एंगल क्रिएट करो कि सन का रेज उस पर डायरेक्टली आके पड़े। और जब सन का रेज डायरेक्टली पड़ेगा तो आप देखोगे कि वो स्प्लिट करेगा और किसी वॉल को, उस सराउंडिंग में कोई अगर वॉल है तो उसको आप स्क्रीन बना लो, आप देखोगे उस वॉल पर आपको 7 कलर्स दिख रहा है। ये कभी भी हम आपको दिखाएंगे जब आपका वेदर कंडीशन सही होगा। किसी दिन अगर सनी डे होगा then I'll bring. Then here you can see, then one question might arise that are they able to combine also? Yes, after splitting, if you keep a prism upside down, एक उल्टे डायरेक्शन में अगर प्रिज्म उसके सामने रख दोगे तो आप देखोगे कि ये 7 कलर्स जो स्प्लिट किया था वो अगेन इट हैज combined and the light which is coming out from that inverted prism, that is white. So what you can conclude that the splitting is done at an angle. एक एंगल पर ही स्प्लिटिंग होता है। लेकिन अब उसके बाद एक और क्वेश्चन है that does it happen to other lights also? यहाँ पर हम एक स्लिट लगाएंगे, स्लिट मीन्स एक बोर्ड लगाएंगे in which we will allow only other color apart from one. तो ये सपोज कर लो ग्रीन कलर को हम अलाउ कर रहे हैं and we are allowing it to fall on another prism. एक और प्रिज्म पर उसको फॉल करवा रहे हैं, but you will see that green color is not changing its or not splitting into other color, and this green color will come out as a green color only. So what can we conclude here children? यहाँ पर हम क्या conclude कर सकते हैं बताइए? इस एक्टिविटी से क्या only white light can be splitted into 7 colors when passed through a prism. Yes. So this is a very important fact that only white light has this capability to split into 7 colors and other colors do not have this capability. ये other colors में capability नहीं होता है। और we are also having this phenomenon in our environment also. तो आप ये सोचते होंगे कि वहां तो प्रिज्म नहीं होता है, तो वहां कैसे ये स्प्लिटिंग होता है? When the rain water comes और जो डस्ट पार्टिकल्स है हमारे एनवायरनमेंट में, they are hanging in the environment and these rain droplets sometimes hang on those polluted air or dust particles which are there. और जब वो रेन भी हो रहा है और थोड़ा सनी डे भी है, मतलब सूरज की रोशनी भी है और रेन भी, ड्रिजलिंग भी हो रहा है, then only you can see a rainbow in the sky. And this does not happen all the time. ये हमेशा नहीं होता है, but it happens only when there is an angle created on those droplets and the sun rays is being refracted from that. Then only the whole sky seems to be as a you can say screen, and the rainbow is seen in the environment, in the nature. So this happens often, you can say all of a sudden, कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, but it is not so that ऐसा अगर condition है तो वो होगा ही। जब वो एक एंगल बनाएगा और उससे वो रिफ्रैक्ट होगा तभी वो डिस्पर्सन है या स्प्लिटिंग हो। जैसे कि अभी आपको हम बताए हैं कि एक बाउल में आप वाटर ले लो और मिरर के एंगल को एडजस्ट करो लाइट रेज से, सन रेज से, डायरेक्ट सन रेज से, तो वो एंगल जब एनवायरनमेंट में मिलेगा तभी वो ड्रॉपलेट चेंज करेगा रेनबो में। Otherwise, it is not possible all the time, but it happens in the environment also. We can see a rainbow with 7 colors in the environment. So, children, is this topic clear? ये topic आपको clear हो गया? Yes, ma'am. चलिए तो Yes, ma'am. रिफ्रैक्शन बाय ग्लास स्लैब, तो उसका डायग्राम एक बार देख लेते हैं ब्लैक बोर्ड पर, and then we will
डिस्कस दैट। रिफ्रैक्शन का डायग्राम के बिना आप लोग नहीं समझ पाओगे ग्लास स्लैब का, तो उस डायग्राम को एक बार मैं बना देती हूँ इस पे ब्लैक बोर्ड पे, एंड देन वी विल डिस्कस। मैम सिर्फ प्रिज्म शेप में ही कैपेसिटी होता है लाइट को ज्यादा रिफ्रैक्ट करने का? ज्यादा और कम नहीं होता बेटा, वो एंगल देता है। प्रिज्म जो है ना, उसका जो स्ट्रक्चर है ना, वो एक एंगल क्रिएट करता है उसको स्प्लिट करने में। जैसे कि हम आपको मिरर में भी बताए, मिरर और वाटर का कॉम्बिनेशन भी बताए ना, तो वो भी एक एंगल बना देता है ताकि वो व्हाइट लाइट स्प्लिट कर जाए। तो एक एंगल होता है जो कि ग्लास स्लैब से नहीं हो सकता है। इसका जो स्ट्रक्चर बना होता है प्रिज्म का, वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो वो एंगल क्रिएट करता है और वो व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर देता है। क्लियर? मैम वो काम स्फेरिकल ग्लास से भी तो हो सकता है, स्फेरिकल ग्लास बॉल। हाँ हो सकता है, ट्राई करके देखते हैं। आई हैव नॉट ट्राइड फ्रॉम दैट, लेकिन हो सकता है उससे भी। लेकिन ग्लास स्लैब में आई हैव नॉट सीन, वो ग्लास स्लैब का वो एंगल क्रिएटेड नहीं हो पाता है, इसलिए उसमें नहीं हो पाता। लेट मी ड्रॉ फर्स्ट, एक मिनट। अपन मिलते हैं। डिस्कशन पीरियड नहीं है। Now, I told you all to read this topic. Did you all go through the lesson? Lesson पढ़े थे? Yes, ma'am. Okay, then I'll ask you some questions also just now, so that I can see that you have studied or not. ये देखना है मुझे कि आप लोगों ने पढ़ाई किया कि नहीं किया। अगर रीड नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। This is a totally a new topic. ओके, नाउ कम बैक, आ जाइए। देखिए दिख रहा है आप लोग को? ब्लैक बोर्ड दिख रहा है ना? Yes, ma'am. अब देखो। Yes, ma'am. हाँ देखो, ध्यान से देखो। जस्ट सी, दिस इज योर ग्लास स्लैब, ABCD। ठीक है, सब लोग ध्यान से देखना। ABCD इज योर ग्लास स्लैब। एक इसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन है? AB। और दूसरा कौन सा सरफेस है? CD। AB पर एक रे फॉल कर रहा है जिसका नाम है PQ। रेज नेम इज PQ। क्लियर?
तो ये किस पर जाकर इंसिडेंट हो रहा है? ऑन द सरफेस AB। AB। और तब ये एंगल एक नॉर्मल MM डैश के साथ बना रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहां से हमारा रूल शुरू होता है। फर्स्ट रूल, दैट व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, दिस इज योर रेयरर मीडियम, ये रेयरर मीडियम है ना? व्हाई? बिकॉज Yes, ma'am. Yes, ma'am. Because the speed of the light is more. तो यहाँ से रे ट्रैवल हो रहा है एंड इट इज रीचिंग योर ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब किस चीज का बना हुआ है? क्या मैम? Optically denser medium. ग्लास का बना हुआ है, तो वो डेंसर है, ऑप्टिकली डेंसर। सो दिस इज योर डेंसर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. फर्स्ट रूल क्या है? When a ray of light travels from rarer medium to denser medium, then what happens? It bends Towards towards its normal. more The toward Ray the of light bends normal. towards the normal. Normal towards It की bends तरफ towards the normal. या towards की तरफ दिख रहा है कि नहीं? ये M dash है और यहाँ देखिए एंगल Yes, बड़ा ma'am. है और यहाँ एंगल क्या है? छोटा दिख रहा है। So this is your angle of incidence and this one is your angle of refraction. Angle of refraction. So this satisfied your first rule. First rule को satisfy किया है कि when it is going from rarer medium to a denser medium, it is bending towards the normal. Now again this ray will not be stopped over here. यहाँ पर तो रे रुक नहीं ना जाएगा. It will travel and hit your which surface? कौन सा surface को hit करेगा? CD. CD. D. करेगा। तो ये क्या बनेगा? ये इंसिडेंट रे बन जाएगा। अभी वो रिफ्रैक्टेड रे था किस सरफेस के लिए? सरफेस AB के लिए इंसिडेंट रे बन जाएगा। तो वो कहाँ फॉल करेगा? एट पॉइंट N पॉइंट पर वो फॉल करेगा। Then it will create an angle over here with the normal. एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल यहाँ बन रहा है। This will be your refracted angle. ये R बना रहा है और ये जो दूसरा रे निकल रहा है ग्लास स्लैब के बाहर, अब कहाँ से निकल रहा है? डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम। Rarer medium. Second rule. Second rule. When a The light ray ray moves when from a denser light medium to ray rare medium, it moves away from normal. Away from the normal. Away from normal. आपका नॉर्मल क्या है? T dash T, ये आपका नॉर्मल लाइन जा रहा है, ये वाला। तो ये नॉर्मल लाइन T से ये क्या है? दूर है या पास है? दूर है। तो जो ग्लास से बाहर निकला, that is known as emergent ray. The ray which has come out of the glass slab is known to be as emergent ray. उसको क्या बोलेंगे? Emergent ray. किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ तक है? No ma'am. Yes, ma'am. No ma'am. No, ma'am. अगर देखो एक पॉइंट और है कि अगर ये रे ग्लास स्लैब से होकर नहीं गुजरता तो ये इस डॉटेड लाइन से पास कर जाता है ना, वो रिफ्रैक्शन नहीं होता वहां पे। तो लेकिन ये चूंकि ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन हो रहा है इसलिए ये रेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये नॉर्मल से क्या हो जा रहा है? पैरेलल हो जा रहा है विथ अ डिफरेंस ऑफ डी डिफरेंस से वो एक दूसरे से डेविएटेड हो जा रहा है। मतलब इतना ज्यादा डेविएशन हुआ है थ्रू द डिस्टेंस d, स्मॉल d से उसको हम डिनोट करेंगे। अब किसी के हम लोग रे और लाइट एक एंगल से गिरा रहे हैं, अगर हम लोग उसको नॉर्मल पे डालते तो वो क्या होता? तो नॉर्मल से No हम refraction. है ना, वी हैव टू सी द रिफ्रैक्शन। नॉर्मल से अगर मान लो रे को हम छोड़ देंगे तो वो स्ट्रेट पाथ पे निकल जाएगा, उसका तो नेचर ही No है refraction. फॉलो करता है। What you are going to prove here? यहाँ क्या देखना चाह रहे हो आप लोग? You are trying to see that the ray is refracted. यही ना देखना चाह रहे हो? Yes, ma'am.
तो वो Yes, ma'am. रिफ्रैक्शन दिख रहा है आपको? अगर नॉर्मल हम ये ग्लास स्लैब नहीं रखते तो ये रे यहाँ से पास कर जाता, यहाँ से आता और सीधा निकल जाता। लेकिन हमको डेविएशन देखना है ना कि ग्लास स्लैब से वो कैसे ये नॉट डेविएशन, रिफ्रैक्शन हमको देखना है कि वो रिफ्रैक्ट कैसे होता है, कितना डिस्टेंस से रिफ्रैक्शन होता है। तो डिस्टेंस d से रिफ्रैक्शन हो रहा है उसका, इतना बेंडिंग उसमें हो रहा है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम अगर एक अलग लाइट रहे ये ग्लास स्लैब से लेकर ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर में जाता तो उसका जो रे रिफ्रैक्ट करता उसको इमर्जेंट रे बोलते हैं कि रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं? डेंसर से अगर वो फाइनल रे निकल रहा है, वो अगर ग्लास स्लैब से फाइनली निकल रहा है रिफ्रैक्ट होने के बाद, तब वो इमर्जेंट हो जाएगा। लेकिन अगर वो पहले फॉल कर रहा है और उसको हमको रिफ्रैक्शन देखना है तो then that will be इंसिडेंट। यही तो डिफरेंस है। यहाँ जब फॉल करवा रहे हैं तो ये इंसिडेंट है एबी सरफेस के लिए, और जब यहाँ वो अंदर से आ रहा है तो वो रिफ्रैक्टेड रे ही कहलाएगा। लेकिन आपके समझने के लिए हम यहाँ पर इंसिडेंट बोले उसको, लेकिन वो आर से डिनोट होगा क्योंकि रिफ्रैक्शन के थ्रू ही आया है। और तब वो डेंसर से रेयर जब फाइनली निकल रहा है तो उसको हम इमर्जेंट रे बोलेंगे। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो आप मैम इसी थोड़ा सा मैम इसको, इसी ग्लास हाँ बोलो। मैम इसी ग्लास स्लैब में दो एडजेसेंट साइड से व्हाइट लाइट को पास करवा के उसको भी तो प्रिज्म जैसा बनाया जा सकता है। दो एडजेसेंट रे को व्हाइट लाइट को किस चीज से पास करवा रहे हो? मैम जैसे ये स्क्वायर शेप का ग्लास स्लैब है तो उसको अगर हम लोग उसके एक वर्टेक्स पे नीचे से रखते हैं वो डायगनली खड़ा हो जाता है, तो अगर उस पे फिर लाइट डालेंगे तो वो भी रिफ्रैक्ट करेगा ना? अगर ऐसा पॉसिबिलिटी है तो एक बार देखना, और अगर आपसे यस मैम, डायग्राम से पता चलता है। देखे हो करके, Ma'am, page मैम number डायग्राम से पता चलता है। 174 पे। क्या क्या Ma'am, page मैम number डायग्राम 174 पे। पेज नंबर 174, क्या 174 में है? मैम एक्टिविटी में जो फिगर है उससे थोड़ा प्रिज्म टाइप का लग रहा है। हाँ तो वो तो नो। मेरे में वो है, ये जो मिरर वाला है जो डिप किया हुआ है वाटर में, कौन सा एक्टिविटी है? आई कांट यस मैम, मैम एक्टिविटी वाला चैप्टर एक्टिविटी 5। मैम व्हाइट लाइट को पैरेलल साइड के तरफ ना डायरेक्ट करके दो एडजेसेंट साइड की तरफ ही अगर डायरेक्ट किया जाए तो वो तो रिफ्लेक्ट करेगा ना? मैम डायग्राम से पता चलता है, डायग्राम बनाने से। हाँ वो कर सकता है, देखने। आई हैव नॉट ट्राइड, हम लोग ट्राई कर सकते हैं उसको। अगर आप ट्राई किए हैं तो यू कैन ब्रिंग दैट एक्टिविटी इन द क्लास, उस एक्टिविटी को क्लास में शो कर सकते हो आप, ठीक है? इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट तो आप नेक्स्ट क्लास में उसको शो कर सकते हो। हु आर यू? कौन बोल रहा है? मैम शुभ नारायण। शुभ नारायण, ओ वेरी गुड। अगर आप ट्राई किए हो, आई हैव नॉट ट्राइड, अगर आप ट्राई किए हो तो आप शो कर सकते हो उस एक्टिविटी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दैट, ठीक है? और कौन बोल रहा था अभी? वन गर्ल वाज आस्किंग समथिंग, क्या पूछना चाह रही थी? एक्टिविटी के बारे में, एक्टिविटी 5 के बारे में। Okay, then first of all, let us come to the reading topic. एक बार इसको dispersion of white light by a glass prism को read कर लेते हैं। अगर कोई टॉपिक छूटा होगा तो then we will discuss it. Okay? कोई भी एक बच्चा उसको read करो। शाश्वत, अनन्या, okay, अनन्या is raising hand. ठीक है, पढ़ो। Dispersion of white light by a glass prism.
A prism is a piece of a transparent material bounded by two plane surfaces inclined at an angle. We generally use prisms having triangular faces. It was in the year 1686 when Sir Isaac Newton did his well-known experiments on the passage of white light through a glass prism. He made a narrow pencil of white light to fall on a glass prism. The emergent light was received on a white paper white screen. It was observed on some adjustment of the prism that there were 7 colors appearing on the screen: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. The colors that we see in a rainbow. A prism, unlike a paddle-faced triangular glass block, was not only deviating or bending an incident ray towards its base, but was also splitting white light into 7 colors. We call this phenomena, splitting of white light into 7 colors, as the phenomena of dispersion of light. In air, all color propagate with nearly the same speed, but in a material medium, light rays of different colors propagate with different speeds. In glass, the speed of violet color is minimum, while that of red color is maximum. Hence, a ray of red color bends minimum towards the base of the prism, while the ray of violet color bends the maximum. This results in white light getting split into its 7 constituent colors from red to violet. So this Activity 6. questions are here. Speed of light, which color has got the maximum speed and minimum speed, and which color bends most or which color bends least. ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे. This 2 question can come. ठीक है, एक्टिविटी छोड़ दो, अब डू यू नो पढ़ो नेक्स्ट पेज में जो दिया हुआ. एक्टिविटी वी हैव डिस्कस्ड. Do you know? Red, blue, and green are known as the 3 primary colors of light. These are often regarded as the basic colors in nature. Mixing these colors in appropriate proportions gives us all the other colors. The primary colors, when mixed in appropriate proportion, give back white light. Any other color produced by mixing 2 or more primary colors in proper proportion is called a composite color. Rainbow, a natural effect of dispersion. Most of us must have had the change of observing a rainbow. We marvel at its beauty and enjoy watching it. When do we observe a rainbow? We can get a rainbow if the sun comes out or shines after a rainfall. The drops of water suspended in air then disperse the sunlight in which the same way as glass prism did in Newton's experiments. Rainbow is thus a natural phenomenon associated with dispersion of sunlight. So the basic color or primary color what we have is red, blue and green. और इसी को मिक्स करके हम several colors बनाते हैं, which are known as composite colors. And here the natural rainbow is a natural phenomenon or an effect of dispersion of white light. Then children, till here any problem to anybody? कोई दिक्कत है आप लोग को कोई भी टॉपिक में जो हम लोग शुरू से इस चैप्टर में पढ़े हैं? Anybody? Now, No, ma'am. Your work is पहले तो आप जितना भी important terms आ रहा है उसको learn कर लो and then go through the chapter. I am telling you to go through the chapter again and again because reading से आपको जो smaller very objective questions which are there in the book that comes in your mind and you can just memorize it or you can have that in your mind by reading. Then ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय अ ग्लास स्लैब जो आप अभी समझे हो, एक बार आप
पॉइंट वाइज उसको रीड करोगे। पॉइंट वाइज रीड इसलिए करने बोल रहे हैं ताकि आप जब अपने से रीड करते हो तो यू कैन विजुअलाइज अकॉर्डिंग टू द डायग्राम विच इज गिवन। जो आपका डायग्राम दिया हुआ है उसको डायग्राम से कोरिलेट करके आप उसको समझोगे। एंड इफ यू विल हैव एनी क्वेरी देन वी विल डिस्कस अगेन। कुछ और भी क्वेरीज होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपके साइड से कोई क्वेश्चन है? और टुमारो वी विल कम टू दिस टॉपिक लेंसेज। लेंसेज टॉपिक पर हम लोग कल बात करेंगे। एंड ऑल ऑफ यू, एक अगर किसी के पास बॉल होगा तो वो बॉल जरूर लेकर आओगे। वी विल हैव दैट एक्सपेरिमेंट इन द क्लास, ठीक है। जो बॉल आप लोग घर में, प्लास्टिक बॉल, टॉय बॉल, जो भी बॉल होता है जिसको आप डिटैच कर सको, दो भाग में बांट सको, उसको हम लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे ताकि आप देख सकते हो कि दो तरह का लेंस जो होता है वो लेंस का सरफेस हम कैसे डिसाइड करते हैं, हाउ इट इज मेड एंड हाउ वी आर, विच सरफेस इज योर विच साइड। क्लियर? ओके, ठीक है। थैंक यू चिल्ड्रन। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.